আজকে ঘটনাচক্রে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্য সফর করছেন। দুপুরবেলা 16 মিনিটের বক্তৃতা করেছেন এই কুমারঘাটে। আমি আস্তে আস্তে শুনছিলাম তার বক্তব্য। 16 মিনিট। এটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের 140 কোটি মানুষের মধ্যে বহুত কিছু বলবেন, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি অন্তত বলবেন সারা দেশ কিভাবে এগোচ্ছে, কেন তারা ভোট চাইছেন। দেশ সম্পর্কে কোনো কথা নেই। ত্রিপুরাতে এসে বলছে যে না, हम मोथा के साथ हमारा दोस्ती बना है, इनको देना है मोदी का हाथ और भी ताकतवर करना है। तो क्यों करना है, কেন করতে হবে, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया। আরো দুর্ভাগ্যের যে এই নির্বাচনে নতুন করে তাদের যে অপ্রকাশ্য তো আগেই ছিল মথা, তার সুপ্রিমো বা তার ফাউন্ডার প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোর, হ্যাঁ তিনি ত্রিপুরাজ্যের শেষ রাজার নাতি। রাজাদেরকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমরা শ্রদ্ধা করি, ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে কোনো শত্রুতা নেই। ত্রিপুরার ইতিহাসে আগামী 100 বছরেও ত্রিপুরা রাজ্যে একটা মাণিক্য রাজবংশ 1400 বছর শাসন চালিয়েছিল, এটা লেখা থাকবে। আমরাও বলবো, আমাদের উত্তরসূরিরা বলবেন। সে ইতিহাস কেউ মুছতে পারবে না। সেই বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের নাতি আজকে বলছেন যে আমি 1949 ইংরেজিতে আমার ঠাকুরমা কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সাথে চুক্তি করে ত্রিপুরা ভারত মুক্তি হয়েছে, আর আমি কাঞ্চনপ্রভার নাতি কিরিট বিক্রম এই প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোর, তার সাথে আজকে 75 বছর বাদে ভারতবর্ষের আরেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আর এখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে আরেকটা ঐতিহাসিক চুক্তি করছি। कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं, आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानि बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। এই ত্রিপুরাজ্যকে কমিউনিস্টরা শেষ করে গেছে। এই ত্রিপুরাজ্যকে কমিউনিস্টরা পেছন দিকে নিয়ে যেতে চায়, এটাও শুনছিলাম বক্তৃতা। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन আমি খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করতে চাই, 1949 ইংরাজির
পর আগে এই তখন এই ত্রিপুরা যে হ্যাঁ নাম ত্রিপুরা রাজ্য, ত্রিপুরারা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলে, কিন্তু এই ত্রিপ্রাসাদের কি ছিল? কজন নাম লিখতে জানতো? ত্রিপ্রাসাদের রিকনাই, ঋষাব, গরিয়া, মমিতা, হজাগিরি, এগুলো কেউ জানতো কি? ত্রিপ্রাসাদের ঋষা, রিগনাই, এই রাজবাড়িতে তার দাম আছে, তার মূল্য ছিল কি? সম্মান ছিল কি? এই ত্রিপুরাজ্য, এই প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোরের বাবা, তার মারা, তারাও শাসন করে গেছেন বহুবার, কিন্তু তারাও এইভাবে অসত্য কথা বলেননি। কিরিট বিক্রমাণিক্য বাহাদুর এবং বিভু কুমারী দেবী, তারাও এইভাবে এই ত্রিপুরাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের আবেগকে ব্যবহার করে এইভাবে একটা একনায়তন্ত্রী, যারা দেশের সংবিধান মানে না, গত 6 বছরে এই ত্রিপুরাজ্যটাকে যারা অসাতলের দিকে ঠেলে দিয়েছে বা দিচ্ছে, এদের কাছে মাথা নত করেনি। আজকে তার নাতি সেখানে গিয়ে কথাগুলি বলছে, এটাই দুর্ভাগ্য। त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी। এই নির্বাচনে কারা প্রার্থী? এই পশ্চিম ত্রিপুরাতে বিপ্লব কুমার দেব বহুত বড় বড় কথা বলেন। তিনি নাকি মুক্তিদাতা, তিনি নাকি ত্রিপুরাজ্য থেকে বিজেপি থেকে এনেছেন, ত্রিপুরাকে রাহমুক্ত করেছেন। আমাদের শুধু একটাই জিজ্ঞাসা, বারবার প্রত্যেক জনসভাতে এবং প্রেস কনফারেন্সে বলি, মাননীয় বিপ্লব বাবু, বহুত সম্মান করে আপনাকে বলছি, আগামী পরশুদিন অব্দি 4টা অব্দি সরব প্রচার হবে এই কেন্দ্রে, প্রধানমন্ত্রী আসবেন। আমি এখান থেকেই বলছি বিপ্লব দেব বাবুকে এবং তার সমর্থকদেরকে আসুন তার কানে পৌঁছানোর জন্য। কেন আপনাকে 4 বছরের মাথাতে আনসিরিমোনিয়াসলি ইংরেজিতে বলে, অর্থাৎ বিনা নোটিশে আপনাকে ঘাড় ধরে চেয়ার থেকে নামিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা একটু বলুন। ধনমণি বাবু বলছিলেন তার কোনো অপরাধ ছিল না, তো অপরাধ না থাকলে এইভাবে নামিয়ে দে? হ্যাঁ, বিজেপির লোক বলতে পারে এটা আমাদের দলের অভ্যন্তরের ব্যাপার, হতে পারে। বিপ্লব কুমার দেব যদি সেদিন মুখ্যমন্ত্রী না হতেন, এটা আপনার দলের অভ্যন্তরে হতে পারত, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে ছিলেন, এটা পাবলিক পোস্ট, সাংবিধানিক পোস্ট, আর সেখান থেকে আপনি সরিয়েছেন। এই রাজ্যের জনগণের 40 লক্ষ মানুষের এবং সাধারণ বিজেপি সমর্থক, তাদের জানার অধিকার আছে। 17 তারিখ অব্দি টাইম আছে। বিপ্লব কুমার দেবের যদি সে রাজনৈতিক নৈতিকতা থাকে, তার উত্তরটা দিন। দ্বিতীয় হলো, এখানে প্রতিমা ভৌমিক এখানে এসে অমিত শাহরা, মোদিরা বলেন আমরা নারী শক্তিকে সম্মান জানাই, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने,
और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का रक्स रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। মহিলাদেরকে ঋণে জর্জরিত করে লাখপতি বানানোর মতো। তাহলে এই প্রতিমা দেবীকে যিনি কাঠালিয়ার প্রতিমাকে সারা দেশের প্রতিমা বানিয়েছেন, আপনারা এই প্রতিমাকে কেন বিসর্জন দিলেন এবং এটা কোন জায়গাতে বিসর্জনটা হলো? এটা কি গোমতী নদী না ওখানে বুড়িমা ছড়া? কেন যে ব্যক্তিকে আপনাদের নামিয়ে দিতে হলো তাকে সরিয়ে এই বেটি বচাও নারী শক্তির প্রতীক प्रतिमा के আপনারা দিলেন। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2 करोड़ 94 लाख गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया। 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया। बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का रक्स रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं,
मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं। 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाइयों और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे?